15 minutes are left only. Alright, so we will first study twinkling of stars. What is twinkling of stars? Do stars ever twinkle? No. तो हमारा आज का टॉपिक है twinkling of stars. हम only एक ही स्टार, अच्छा stars. So this is our mother earth. ये हमारी धरती माता है. And the earth has an atmosphere, a layer of various gases surrounding the earth is called the earth's atmosphere. Or the earth's atmosphere is very thin at the north pole and at the south pole, and it is a thicker layer here at the equators. And फिर उसके बाद थोड़ी सी और जाली लेयर कर देते हैं. Suppose the star is here in the sky. And we know, it is said that there is vacuum in space and a ray of light. और क्या एटमॉस्फेयर थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए लोग. This is the Earth's atmosphere. A ray of light is coming from the star. A ray of light comes from the star. Many rays come, but we are considering only one ray of light coming from the star. एक ray of light star से आ रही है, and since it is coming from vacuum, it is coming from rarer medium. And what is the refractive index of vacuum? 1. Refractive index of vacuum is taken to be 1, and it enters the Earth's atmosphere, which is comparatively denser medium. और अर्थ के एटमॉस्फेयर का डेंसिटी भी हर जगह सेम नहीं रहता है. धीरे धीरे ग्रेजुअल डेंसिटी चेंज होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर का. तो दिस रे ऑफ लाइट विल स्लाइटली बेंड और यहाँ पर एक बच्चा सोया है और उसकी आंखों में लाइट जा रहा है. लाइट बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल. कुछ अच्छा बेंड नहीं किया है ना, जाने दो जैसा भी है. So this ray of light is going into the eyes of that boy. So the boy or girl thinks that the star is here, because human beings have a tendency to suppose that light always travels in a straight line. Why do we believe that light always travels in a straight line? Because right from our childhood we always see a laser beam moving in a straight line. हमको हमेशा दिखता है कि लेजर लाइट सीधी लाइन में जा रहा है. हमको सनलाइट सीधी लाइन में जाता दिखाई देता है. हमको डे टू डे लाइफ में हमारी शैडो सीधी लाइन में आती हुई दिखाई देती है. तो हमारे मन में बस जाता है that light always travels in a straight line, but it sometimes does not happen. So this child or this lady lying on the ground thinks that the rays of light this ray of light is coming from this position. So the true position, the real position of the star is here, and this is the apparent position of the star. Apparent or virtual position of the star. This is the virtual star. And what is virtual? If an object is not present, but we see the object there due to an illusion in our brain. So that image is called a virtual image, है ना. जो हमारे आंखों के धोखे के कारण, दिमाग के धोखे के कारण दिखाई दे, उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं. तो हमको वर्चुअल इमेज जो है इधर दिखाई दे रही है ना वेदांत. तो ये इमेज हमको ऐसे दिखाई दे रही है. स्टार किधर है? यहाँ पर, बट हमको दिख रहा है कहाँ? वहाँ. तो the true position, the real position of a star is always slightly lower than its apparent position. जहाँ दिखता है वहाँ नहीं होता, उससे थोड़ा लोअर पोजीशन में होता है स्टार. और क्या ये पोजीशन भी फिक्स्ड होती है? नहीं, ये पोजीशन भी चेंज होती है. कैसे चेंज होती है? तो वी नो द बेंडिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन हाउ डेंसर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज. अगर बहुत ज्यादा डेंसर एटमॉस्फेयर रहेगा तो लाइट ज्यादा डिग्री से बेंड होगा, और अगर कम डेंसर होगा एटमॉस्फेयर तो लाइट विल नॉट बेंड विद so much an angle. So if the density of atmospheric air decreases, suppose, then the ray will go
will not bend much, it will go here, and the person will see the star to be at this position. Confused? Where is the red pen? Not visible. Okay. If this ray of light does not bend much, then the person lying here will see the star to be at this position. At this position. क्योंकि ये बेंड नहीं हुआ, रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर, लेकिन उसको इधर दिखाई दिया, तो ज्यादा बेंडिंग होगी तो ये पोजीशन दिखाई देगा, कौन सा, ये ऊपर वाला, और लेस बेंडिंग होगी so the person will see the star to be at this green position. So it all depends on how much the ray of light will bend, and by how many degrees the ray of light will bend depends on how dense the atmosphere is. The denser the atmosphere, if the density of the atmosphere becomes more, optical density, then the ray of light will bend by a greater angle, and the star will be seen higher in the sky. And if the ray of light bends by only a little angle, then the star will be visible at another position. And in this way, the density of atmosphere keeps on changing, and due to this, the position of the star does not appear to be fixed. It keeps on changing. And another thing, the stars appear to be twinkling. Stars never do twinkle. They never twinkle. They appear to be twinkling because of refraction of light. Sometimes the atmosphere becomes very dense. What do you think? Hot air behaves like rarer medium, or cool air behaves like denser medium? What is your opinion? Both are correct. Always remember, hot air behaves as an optically rarer medium, and comparatively cool air behaves as an optically denser medium. So atmosphere का temperature does not remain the same throughout. मतलब क्या होता है? Sometimes if the temperature decreases, if the temperature of the atmosphere decreases, the air will become denser, and we know that a denser medium absorbs more light and allows only a small amount of light to pass through it. तो जब एटमॉस्फेयर डेंसर हो जाता है, जब ठंडी का मौसम आ जाता है, या जब टेम्परेचर कम हो जाता है शाम के समय, तो टेम्परेचर कम होने से एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसर मीडियम बन जाता, और वो क्या करता, स्टार से आने वाली लाइट को, बहुत सारे लाइट को ऑब्जॉर्ब कर लेता, ओनली कुछ परसेंट लाइट हमारी आंखों में आता है, तो हमको लगता है स्टार डिम हो गया, हमको लगता है स्टार डिम हो गया। स्टार डिम नहीं हुआ, its brightness is constant. The light emitted by the star has constant intensity, same brightness, its brightness is not changing. But atmosphere ने ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब कर लिया डेंसर बनने के कारण, तो हमको ऐसा लगता है कि स्टार का लाइट डिम हो गया, और थोड़ी देर के बाद क्या होता, गर्म हवा आ जाती है, हॉट एयर कम्स इन, और गर्म हवा आ जाती है तो एटमॉस्फेयर कैसा बन जाता है, कंपैरेटिवली लेस डेंसर हो जाता है, या जैसे रेरर जैसे हो जाता है समझो। तो फिर क्या होता, रेरर होने से द एटमॉस्फेयर अब्सॉर्ब लेस लाइट, एटमॉस्फेयर कम लाइट अब्सॉर्ब करता है, रेरर मीडियम कम लाइट अब्सॉर्ब करता है, डेंसर मीडियम ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब करता है। तो जब एटमॉस्फेयर रेरर मीडियम बन जाता है, रेरर यानी वैक्यूम जितना रेरर नहीं, बट डेंसर से लेस डेंसर बन जाता है, तो एटमॉस्फेयर अब्सॉर्ब्स लेस लाइट एंड passes more light which comes into our eyes, and we see that the star is shining more brighter than earlier. हमको लगता है अरे स्टार जो है अब ज्यादा चमक रहा है, ज्यादा ब्राइटर हो गया, और थोड़ी देर पहले डिम था। तो व्हाट इज ट्विंकलिंग? लाइट का ब्राइटनेस चेंज होना इज कॉल्ड ट्विंकलिंग। समझ रहे हो? किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है और वो लाइट का ब्राइटनेस कभी बढ़ जाता है, कभी डिम हो जाता है, कभी ब्राइट, कभी डिम, कभी ब्राइट, दैट इज कॉल्ड ट्विंकलिंग। तो हमको लगता है कि स्टार का लाइट ब्राइट डिम ऐसा हो रहा है, लेकिन स्टार का लाइट ब्राइट या डिम नहीं हो रहा, एटमॉस्फेयर लाइट अब्सॉर्ब कर लेता है ज्यादा, तो हमको स्टार डिम दिखाई देता है, और जब एटमॉस्फेयर ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब नहीं करता तो स्टार हमको ब्राइट दिखाई देता है। और
एटमॉस्फेयर ज्यादा लाइट कब अब्सॉर्ब करता है? जब वो डेंसर मीडियम बन जाता है। और जब लाइट स्टार हमको ब्राइटर, ज्यादा ब्राइट कब दिखता है? जब एटमॉस्फेयर ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब नहीं करता, जब वो लेस डेंसर या रेरर जैसा बन जाता है। और एटमॉस्फेयर रेरर और डेंसर क्यों बनता है? टेम्परेचर के चेंज होने से। टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो एटमॉस्फेयर क्या बन जाता है? डेंसर। और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो कंपैरेटिवली रेरर बन जाता है। क्या इसके अलावा और कोई चीज होती है? व्हाट अबाउट ह्यूमिडिटी? क्या ह्यूमिडिटी का भी कुछ इफेक्ट होता है रेरर और डेंसर पर? तो यस, जब एयर में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर, तो और एटमॉस्फेयर डेंसर मीडियम का काम करता है। और जब मॉइस्चर कम हो जाता है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, तो रेरर मीडियम का काम करता है। तो एक है टेम्परेचर, एक है ह्यूमिडिटी, और एक है लेयर ऑफ थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर। थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर यानी अगर एयर की जाड़ी लेयर आ जाए तो ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब कर लेती है, और एयर की पतली लेयर आ जाए तो वो कम लाइट अब्सॉर्ब करती है और ज्यादा लाइट हमारी आंखों तक पहुंचने देती है। तो ड्यू टू दिस ऑल दीज इफेक्ट्स, और ये सब जो है ना, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर, इन सबको, और सीजन, विंटर में और समर में भी डिफरेंस होता है। तो ये सब चीजों का हमारी टेक्स्ट बुक ने, अपनी टेक्स्ट बुक ने कहा है ड्यू टू द चेंज इन द फिजिकल कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर। फिजिकल कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की फिजिकल कंडीशंस चेंज होने के कारण एटमॉस्फेयर डेंसर रेरर बनता है। जब डेंसर बनता है तो ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब करता है, रेरर बनता है तो कम लाइट अब्सॉर्ब करता है, और हम तक आने वाले लाइट का ब्राइटनेस चेंज होता रहता है। उसी के कारण हमको ऐसा लगता है, इट अपीयर्स as if the star is twinkling in the sky, but stars never do twinkle. What about planets? Why doesn't the moon twinkle? जैसे स्टार ट्विंकल करता है ना? नहीं, स्टार भी ट्विंकल नहीं करता और मून भी ट्विंकल नहीं करता। तो स्टार ट्विंकल करते हुए दिखाई देता है, मून क्यों नहीं लगता कि ट्विंकल कर रहा? दो रीजन है। एक रीजन है, हाँ निधि करेक्ट, एक रीजन है कि द मून इज क्लोजर टू अस देन द स्टार। पास में है मून हमसे। कितना दूर है? तो नियरली 3.84 into 10⁵ किलोमीटर्स, यानी 3.84 लाख किलोमीटर्स अर्थ से वो नियरली दूर है। तो स्टार से तो बहुत पास है हमारे लिए कंपैरेटिवली मून, तो इसीलिए हमको मून ट्विंकल होते हुए नहीं दिखाई देता। दूसरा रीजन ये है, वी कैन कंसीडर द मून टू बी मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट यानी ऐसा इमेजिन करो कि मून बहुत सारे एलईडी से बना है, छोटी छोटी एलईडी है। एलईडी समझता है ना? एलईडी, बॉयज एंड गर्ल्स, एलईडी नहीं मालूम? मालूम है ना, लेकिन आप भूख लग गई या तो 6 बज गए होंगे। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, एनोड कैथोड दो होता है इसलिए डायोड कहते हैं। लाइट, ये हमारे काम का नहीं है, नॉलेज के लिए लिख रहे, लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड यानी एनोड एंड कैथोड दो रहते तो डायोड। तो लाइट एलईडी, अगर समझो मेरे पास एक डिस्क है, बड़ी प्लेट है, सपोज आई हैव अ बिग प्लेट ऑफ लार्ज डायमीटर एंड आई हैव स्टक अ लार्ज नंबर ऑफ, सपोज 1 लाख टाइनी एलईडीज ऑन इट। 1 लाख टाइनी एलईडीज, मैंने कितने एलईडीज लगाए इसमें? 1 लाख। और सपोज थोड़ी देर पहले यहाँ के 50 एलईडीज काम नहीं करते, सपोज 50 LEDs are not emitting light, or the 50 LEDs situated at the topmost position are not emitting the light. Suppose there is some problem with them. What will happen to the brightness? Still the brightness will be more. Why? If out of 1 lakh LEDs, 50 LEDs are not emitting any light, will the brightness appear to be decreasing? No, because already there are so many other LEDs. And the second thing, if suppose these LEDs start emitting light and the 50 LEDs at this position do not emit light, what will happen to the brightness? It will remain the same. So the moon can be considered to be made up of a large number of tiny sources of light. If the brightness of one source of light decreases, the brightness of other source of light, the other sources emit so much bright light that we do not see any difference, even if some
light sources do not emit light. 1,00,000 अगर एलईडीज है, उसमें से 10, 20, 50 एलईडीज कहीं के इधर के या इधर के या इधर के कहीं कम ज्यादा भी हो जाते हैं, तो उनका ब्राइटनेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता. द एवरेज ब्राइटनेस रिमेन्स कांस्टेंट, सेम. मीनिंग समझ रहे हो? तो मून भी ऐसा ही है. ऐसा लगता है कि द मून एंड नियर बाय प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट. एलईडी की जगह हमको एग्जाम में क्या लिखना है? पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट. So we can imagine the moon to be made up of a large number of point sources of light, and the average brightness remains constant. Average brightness कैसा रहता है? Constant रहता है, same रहता है. अगर कहीं से लाइट आ रहा है, कहीं से बंद भी हो गया तो सेम रहता है. लेकिन स्टार में क्या होता है? इट इज अ सिंगल पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. अगर एक स्टार से आने वाली रे हमारी आंखों पे नहीं आई तो हमको लगता है इसका लाइट डिम हो गया, और एक स्टार का लाइट ज्यादा आ गया तो हमको लगता है ब्राइट लाइट आ गया. तो सिंगल स्टार है तो सिंगल पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, उसका लाइट कम ज्यादा हो गया तो हमको पता चल जाता है. लेकिन बहुत सारे लाइट के सोर्सेज है, उसमें एक दो लाइट्स नहीं भी आ रहे, एक दो एलईडीज, एक दो सोर्सेज ऑफ लाइट बंद भी है, तो भी एवरेज ब्राइटनेस रिमेन्स द सेम. एंड दैट इज द रीजन वी डू नॉट सी प्लैनेट्स ट्विंकलिंग. सो देयर आर टू रीजंस. द प्लैनेट्स आर क्लोजर टू अस देन द स्टार्स. नाउ रीजन नंबर 2, the planets can be considered to be made up of a large number of point sources of light, and even if the brightness of some point sources of light decreases, we do not see any difference in the average brightness of light that is coming from the planets. That is the reason we do not see the planets to be twinkling. I hope you understood this. And the next topic is advanced sunrise and delayed sunset.